Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. So in this class we are just going to discuss about the introduction of chromosomes and DNA. What are chromosomes? These are the thread-like coiled structures made up of DNA and proteins called histones. क्रोमोसोम एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि कॉइल्ड होते हैं और थ्रेड लाइक होते हैं, धागे नुमा होते हैं, जो कि डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। और वो प्रोटीन कौन से होते हैं? हिस्टोन, फाउंड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट एंड एनिमल cells. The main function of chromosomes is packaging system, organizing and safely storing long strands of genetic information so that organisms can grow, survive and reproduce. क्रोमोसोम्स का मेन फंक्शन ये है कि वो पैकेजिंग सिस्टम होता है। दैट मीन्स के द इंफॉर्मेशन इज पैकेज्ड और कंटेन्स्ड इनटू ए शॉर्टर स्पेस within the nucleus, and the long strands within the chromosomes are organized and safely stored. That contains genetic information, and with the help of that genetic information the organism can grow, survive and reproduce. The chromosomes were first observed by German embryologist, that was Walter Fleming, in 1879 when he was examining the rapidly dividing cells of salamander larvae with the help of a primitive लाइट माइक्रोस्कोप। एक शुरुआती लाइट माइक्रोस्कोप था जिसकी मदद से वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में ऑब्ज़र्व किया, एग्ज़ामिन किया रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को, जिसमें क्रोमोसोम जो थे वो विजिबल थे। तो वो फर्स्ट ही साइंटिस्ट थे जो कि क्रोमोसोम्स को ऑब्ज़र्व किया, वाल्थर फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ऑब्जर्व दोज थ्रेड्स विच वर अपीयर टू बी डिवाइडिंग लेंथ वाइज। फ्लेमिंग ने ये ऑब्ज़र्व किया उन डिवाइडिंग सेल्स पर कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो लेंथ वाइज डिवाइड होते जा रहे थे। तो एक रीज़न है डिवाइडिंग सेल्स को ऑब्ज़र्व करने का कि उन्होंने सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स को ऑब्ज़र्व किया बिकॉज क्रोमोसोम्स are only visible and condensed during the division phase. This is the reason कि उन्होंने rapidly dividing cells को ऑब्ज़र्व किया, ना कि नॉन डिवाइडिंग सेल को जिसमें क्रोमोसोम्स या ये जो डीएनए है वो क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होते हैं। तो उसने जब फ्लेमिंग ऑब्ज़र्व किया वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो थे जो कि डिवाइड होते जा रहे थे, तो उस फिनोमिनन को फ्लेमिंग ने एक टर्म दिया जो कि माइटोसिस था। दैट मीन्स अगर हम इसकी ग्रीक रूट देखें, माइटोस मीन्स थ्रेड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्रोमोसोम नंबर इन सेलेक्टेड यूकैरियोट्स। न्यूरोस्पोरा एक यूकैरियोटिक फंजाई है, तो these are usually found in haploid forms, so they contain 7 number of chromosomes. If we talk about Saccharomyces जो कि एक yeast है, it contains 16 chromosomes, so both of these are examples of fungi. What about some insects? Mosquito contains 6 number of chromosomes, Drosophila 8, and among honeybees there are diploid females that contain 32 number of chromosomes in their cell, haploid males 16, silkworm 56, and among vertebrates opossum 22, frog 26, mouse 40, human 46, chimpanzee 48, horse 64, chicken 78, dog 78. So these are the selected eukaryotes that have their own specified number of chromosomes in their cell.
The chromosomes are found in the cells of all eukaryotes. If you talk about the presence of chromosomes, ये कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये जो हैं तकरीबन all eukaryotic cells के अंदर मौजूद होते हैं. Most of the organisms possess single pair of chromosomes. बहुत से organism जो होते हैं उसमें single pair of chromosome होता है. Some ferns have more than 500 pairs. अगर हम प्लांट की बात करें जैसे कि ferns हैं तो उसमें 500 pairs हो सकते हैं. Most of the eukaryotes have between 10 and 50 chromosomes in their each cell of their body. अगर हम एवरेज की बात करें तो फिर बहुत से यूकारियोट जो हैं उसमें 10 और 15 के दरमियान क्रोमोसोम नंबर हो सकते हैं हर एक सेल के अंदर. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इफ़ यू टॉक अबाउट a particular cell that contains one complete set of chromosomes, that cell is known as haploid. And if another cell contains twice the number of chromosomes in haploid cells, that cell is diploid. And particularly if we talk about human cell, तो human cell के अंदर haploid cell जो होते हैं they contain 23 number of chromosomes, such as उनमें से gametes हो सकते हैं. gametes हैं for example sperms and eggs are examples of what? Haploid cells. Now coming towards a term that is called homologous. Homologous term is used for each of the maternal and paternal chromosomes. They are homologous to each other. If we talk about one chromosome from mother and the other chromosome from father, so both of these are homologous to each other, we can say, because they are morphologically similar. Each pair of chromosome is called homologue. अगर हम हर एक पेयर की बात करें फादर एंड मदर के क्रोमोसोम को, so both of these can be collectively known as homologue. क्रोमोसोम साइज, क्रोमोसोम्स की साइज़ कितनी होती है? देयर साइज इज़ टिपिकली मेजर्ड इन बेस पेयर्स. इस मॉडर्न इरा पर क्रोमोसोम्स की हम साइज़ को बेस पेयर्स के बुनियाद पर हम उन्हें मेजर कर सकते हैं, और बाय फिज़िकल लेंथ या फिज़िकल लेंथ के ज़रिए भी कर सकते हैं अंडर द फील्ड ऑफ माइक्रोमेट्री, इन विच यूनिट माइक्रोमीटर्स अंडर ए माइक्रोस्कोप के ज़रिए. If we talk about the largest chromosome within human, that is chromosome number 1, which contains 249 million base pairs, जिसके अंदर 249 मिलियन बेस पेयर्स हो सकते हैं. अबाउट 8 सेंटीमीटर ऑफ एक्सटेंडेड DNA. अगर एक्सटेंडेड DNA की अगर उनके DNA को एक्सटेंड किया जाए तो फिर उनकी साइज़ होगी 8 सेंटीमीटर. इफ़ यू टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट chromosome, which is chromosome 21, so it contains 47 million base pairs. Its size in extended DNA form might reach 1.5 centimeter. What does mean by centromere? It is the specialized constricted region of a chromosome that links two sister chromatids together. Each chromosome contains a pair of sister chromatids. So basically a chromosome contains two sister chromatids, but at the center it contains a centromere जो कि दोनों sister chromatids को join करता है. So centromere एक specialized constricted region होता है जो कि बीच में सेंटर में मौजूद होता है of a chromosome that links two sister chromatids together. Centromere acts as the attachment point for spinal fibers. During cell division, the spinal fibers attach to this region of centromere that helps in the movement of chromosomes. The centromere provides space for kinetochore. As I have already told कि एक और स्ट्रक्चर जो कि होता है kinetochore, एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है दैट फिजिकली अटैचेस टू स्पाइनल फाइबर्स, और ये फिजिकली अटैच होता है स्पाइनल फाइबर्स के साथ and then help in the movement of chromosomes towards the polar region of the cell. Chromosome segregation, what does mean by it? It ensures chromosomes are pulled up evenly to opposite ends, which are called
polar regions of the dividing cell. एक फ्रेज है क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, दैट मीन्स के इट इंश्योर्स, ये हमें ये बताती है कि कैसे क्रोमोसोम जो होते हैं वो बराबर के तौर पर दोनों पोलर रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. सेंट्रोमेयर पोजीशंस एंड क्रोमोसोम शेप. द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमेयर वेरीज बाय क्रोमोसोम्स एंड डिटरमिन्स इज ओवरऑल शेप. तो सेंट्रोमेयर की पोजीशन या लोकेशन जो है वो क्रोमोसोम्स की ओवरऑल शेप को डिटरमिन करता है, क्लासिफाइंग देम इनटू 4 प्राइमरी टाइप्स. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल ही बीच में मौजूद होता है और दोनों तरफ से जो आर्म्स होते हैं क्रोमोसोम के जो बाजू होते हैं वो इक्वल होते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट सब मेटासेंट्रिक, लोकेटेड स्लाइटली ऑफ सेंटर रिजल्टिंग इन क्लियरली अनइक्वल आर्म्स. तो उसमें बराबर नहीं होते आर्म्स, एक जो होते हैं थोड़े से छोटे होते हैं और दूसरे थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े लेंथी आर्म्स होते हैं. सच एज लॉन्ग क्यू आर्म्स, जो कि लॉन्ग होते हैं वो उन आर्म्स को हम कह सकते हैं क्यू आर्म्स, एंड जो शॉर्ट होते हैं वो होते हैं पी आर्म्स. एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, तो इसमें क्या होता है कि जो एक साइड के आर्म्स होते हैं वो बिल्कुल ही छोटे होते हैं और दूसरी तरफ के जो आर्म्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनसे कंपैरेटिवली लेंथी होते हैं. टेलोसेंट्रिक, लोकेटेड एट द एब्सोल्यूट टिप ऑफ द क्रोमोसोम. तो इसमें सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम के टिप में मौजूद होता है, तो नॉट फाउंड इन ह्यूमन्स. तो ये जो है इस किस्म के क्रोमोसोम्स ह्यूमन्स के अंदर मौजूद नहीं होते. कार्योटाइप है क्या? इट इज़ अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑर्गेनिज्म पजेसेस. जो भी क्रोमोसोम्स की तादाद होती है किसी भी जानदार के अंदर, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, फंजाई हो, तो उन क्रोमोसोम्स के नंबर को हम कहते हैं कार्योटाइप, कलेक्टिवली कहते हैं. ह्यूमन कार्योटाइप की बात करें तो फिर ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट मीन्स 23 पेयर्स. तो 23 पेयर्स में से एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. ऑटोसोम्स की तादाद 23 में से 22 पेयर्स होती है. तो 23 में से 22 पेयर जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स बॉडी के ट्रेड्स और फंक्शन को डिटरमिन करते हैं. दैट मीन्स के हमारे जो भी ट्रेड्स हैं, जैसे कि हाइट हो, स्किन कलर है, या बॉडी शेप हो, या कुछ भी ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, वो क्या है कि 22 पेयर्स कंट्रोल करते हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि 23rd पेयर है, वो जेंडर को डिटरमिन करते हैं. जैसे कि अगर इफ़ यू टॉक अबाउट फीमेल, सो द 2X chromosomes determine the gender female, while the XY chromosome determine male. So here is a brief introduction about DNA. The details of this topic will be discussed in our upcoming class. So DNA, it stands for deoxyribose nucleic acid. It carries genetic information important for development, survival, reproduction एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है तो वो इम्पोर्टेंट होती है जानदारों की डेवलपमेंट के लिए, उनकी बका के लिए, सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और उनके फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है. क्यों इम्पोर्टेंट होती है? बिकॉज दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो कि इंजाइम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. और इंजाइम यू नो वेरी वेल अबाउट इट के ये केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं जो कि हमारे सेलुलर फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं. इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ. डीएनए को हम ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ कहते हैं बिकॉज विदाउट डीएनए द लाइफ वाज इम्पॉसिबल. So just because of DNA, the existence of living organism and the reproduction of living organism is possible, as it serves as the stable heritable repository of genetic information. हम इसे blueprint of life इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेरिटेबल रिपोजिटरी होती है. हाँ, दैट मीन्स एक ऐसा ज़रिया, एक ऐसा सोर्स जो कि पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ट्रेड्स मुंतकिल होते हैं. नाउ कमिंग टू द बेस पेस के डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में मौजूद होता है. सो इट लुक्स लाइक ए ट्विस्टेड लेडर.
जिसके अंदर बेसिस जो होते हैं कम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में अरेंज होते हैं. जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट 89, सो इट पेयर्स विद द थायमाइन, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट guanine, इट पेयर्स विद द cytosine. So in this way, this information is coded, is present in the form of a code that helps in the production of protein. So all of these processes of converting or decoding genetic information of DNA ultimately into the production of protein. So all of these will be discussed in our next upcoming classes. So this is just a introduction of DNA and chromosome. की कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए के अहम कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप है, ये शुगर मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजीनस बेस होता है इसमें. तो और जो बेसिस होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं, जैसे कि 89 जो कि सिम्बलाइज किया जाता है. यहाँ पर बेसिस पर आप देख सकते हैं कि ये लेटर्स की फॉर्म में सिम्बलाइज किए हुए हैं. 89, थायमाइन, साइटोसाइन एंड guanine. So all of these have a pairing rules. As I have already told कि ये जो 89 है, so it pairs with the thymine and the cytosine pairs with the guanine. Structural organization of the DNA. तो इनकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये होती है कि DNA डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है. ओरिजिनली DNA ट्विस्टेड लेडर की फॉर्म में होता है. तो अगर DNA को स्ट्रेटन किया जाए, सीधा किया जाए, तो फिर इट विल शो 2 स्ट्रैंड्स. सो इट विल शो 2 स्ट्रैंड्स लाइक दिस. तो ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है, वी कॉल दीज 2 स्ट्रैंड्स एज बैकबोन. तो ये बैकबोन की तरह हैं. अगर ये दोनों नहीं होते तो फिर नाइट्रोजीनस बेसिस जो होते हैं वहाँ पर उनकी मौजूदगी नहीं होती. तो इसलिए बैकबोन का होना बहुत ज़रूरी है फॉर द base pairs to stay there. The sides of the ladder are formed by an alternating sequence of sugar and phosphate molecules. दोनों स्ट्रैंड्स फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द रंग्स, जो कि बीच में जिसकी वजह से 89, थायमाइन एंड guanine, साइटोसाइन जो कि बेसिस होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं. द रंग्स ऑफ द ladder consist of base pairs हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से वो बेस पेयर्स जो होते हैं वहाँ पर रंग्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं. सो यू कैन सी हेयर लाइक दिस के ये जो लेडर होता है तो उसमें रंग्स मौजूद होते हैं. बट इन DNA यू कैन सी द बेस पेयर्स आर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. नाउ व्हाट डज मीन बाय पैकेजिंग? इन यूकारियोट्स लाइक ह्यूमन्स मोस्ट DNA इज़ फाउंड इनसाइड द सेल न्यूक्लियस, जो कि बहुत ही छोटी जगह होती है. न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही छोटी सी स्पेस होती है जिसके अंदर DNA कंडेंस्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेजिंग, टाइटली पैक्ड इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स. तो वो इस क्रोमोसोम्स के फॉर्म में वो DNA कंडेंस्ड पैक्ड की फॉर्म में मौजूद होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ DNA मौजूद होता है.